Q-Tricks. Learn, practice, achieve. Hello everyone, this is Renu and welcome back to Q-Tricks. Today we are going to solve questions which are related to square and square root chapter, and these questions are of type word problems. Okay, and these questions are from R.D. Sharma. So let's start our question number 1. The first word problem is the area of square field is. You have given the area of square field. Okay, क्या है square field का area? 101 whole upon 1 upon 400 square meter. ये है area of the field. Okay. Find the length of the one side of the field. हमें क्या करना है? एक side field के length find out करनी है. Okay, find the length of the one side of the field. See, this is the field. एक side की length को find out करना. The length of one sided of the square field be x meter. हमने मान लिया x meter because all sides of one square are equal. सारी sides square की equal होती हैं, तो मैंने एक को x मान लिया. That means सारी ही x होंगी. तो area of the field क्या हो जाएगा? Area of the square होता है side square and side is x, तो area of the field will be x square. So हमें पता चल गया area of the field here now. But the area of the field, जो given area of the field है वो क्या है? 101 whole 1 by 400 meter square. इसको improper में change करेंगे, we get, हमें इससे मिला 40,401 upon 400 meter square. ये क्या आया हमारा? area of the field. And area of the field is that x square है. So x square is equal to हमारा क्या आ जाएगा? 40,401 upon 400. ओके, अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है. तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? x is equal to root of 40,401 upon 400 is equal to इन दोनों का अलग अलग से रूट. ठीक है, होल फ्रैक्शन का रूट मीन्स न्यूमरेटर का अलग रूट और डिनोमिनेटर का अलग रूट. ठीक है, तो नाउ वी शैल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 40,401 एंड 400 सेपरेटली. ओके, अब हम इनका स्क्वायर रूट जो है वो सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे. सी, पहले 40,401 का निकालते हैं. हाँ, we will do this by long division method. This method is known as long division method. We have already learned this in previous videos. आप उसे playlist से जाके check कर सकते हैं. So सबसे पहले हमें long division method में solve करने के लिए we have to pair it. हमें उसे pair करना पड़ता था, तो मैंने pairing कर ली. The first we get is 4. Okay, तो 2 जो 4 is there. So यहाँ पे ये misprint हुआ है. 2 will be there. 2 जो 4. Now the second pair is 0 4. अब हाँ, then we have to double the quotient, तो 2 plus 2 is 4. Okay, अब हमारे पास यहाँ पे 4 आ गया और जो हमने जो पहला that period उतारा that is 4. Okay, तो अब ये से divisible नहीं हो पाएगा, तो हमें second period भी लेना पड़ेगा. We get, अगर हमने दोनों पीरियड लिए तो हमारे पास नंबर आ गया. हाँ, सेकेंड पीरियड लेने की वजह से हमें यहाँ पे 0 देना पड़ेगा, तो ये हो गया हमारे पास नंबर 401 अंदर. तो 401 कब आएगा? When we multiply this, हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा. So I have multiplied this, I get 401. तो ये पूरा डिविजिबल हो गया by 201 का क्या है? Is the square of square is 40,401. अब 400 का निकाल लेते हैं. पेयरिंग की पीरियड्स बनाए. सो वी गेट दिस लाइक दिस. ये 2 आएगा, यहाँ पे भी मिसप्रिंट हो गया. सो 2 जो 4, ये आ गया 0. नेक्स्ट क्या है? सभी 0 हैं, तो आई हैव टू गिव दिस 0 नेक्स्ट पीरियड उतारने के लिए. ये आ गया, नेक्स्ट पीरियड उतर गया. अब देखो 4 हमारे पास आया था डबल ऑफ क्वोशिएंट, दैट इज 2 + 2 4. सो अब मैं इसको 0 से मल्टीप्लाई करूंगी, देन ओनली ये 0 आएगा, तो ये आ गया 20 का स्क्वायर. सो 20 का स्क्वायर इज 400. Thus, root of 40,401 is 201
and root of 400 is 220, sorry. So x is equal to 201 upon 20 आ जाएगा. That means hence the length of one side of a field. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो field का एक side की length है that is 201 upon 20 मीटर. ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो भी क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग इसमें इसको जो भी प्रॉब्लम गिवन है उसके अकॉर्डिंग उसे फिक्स कर लेना है. देन यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिविजन मेथड. और आप एनी मेथड यू कैन यूज टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट. ओके, द प्रोडक्ट ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज. दो नंबर का प्रोडक्ट है ये. दिस इज द two numbers product. Okay, that is 1575 and the quotient is, जिनका quotient क्या है 9/7 है. Find the number. We have to find out the number. हमें number find out करने कि वो दो number हैं क्या. Let one number be a. अगर मैं एक number को a मानती हूँ, let be a, since the product of a number is this 1575, तो दूसरा number क्या हो जाएगा, देखो a इंटू b था इज इक्वल टू 1575 हो रहा था. अब मुझे b फाइंड आउट करना है, तो b कैसे फाइंड आउट होगा, 1575 डिवाइडेड बाय a, तभी तो b आएगा. तो दैट मीन्स इट इज गिवन दैट द क्वोशिएंट ऑफ टू नंबर इज, एंड क्वोशिएंट इज ऑल्सो गिवन 9/7, सॉरी. सो a बाय 1575 upon a, this is the other number, okay, is equal to 9/7. okay, ये अगर फर्स्ट नंबर है तो ये सेकंड नंबर है. सो ये हो गया, a ऊपर चला जाएगा, here the a will go up, ये हो जाएगा a square upon 1575 is equal to 9/7. ओके, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. ये डिवीजन में इट विल गो अप राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में. तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 1575 अपॉन 7. सो वाइल सॉल्विंग दिस पार्ट वी गेट a स्क्वायर इज इक्वल टू 2025, दैट इज 2025. अब हम क्या कर देंगे, 2025 का फैक्टराइज निकाल लेंगे. 5 से 5 4 जा 20, 0 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 और 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, 3 7 जा 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. तो ये आ गया 2 times 5, 5 1 to 5 and 4 times 3. तो दैट इज 3 to 3 का स्क्वायर. ओके, सो ये क्या आया, a स्क्वायर इज इक्वल टू दिस. अब a इज इक्वल टू कैसे आएगा, a इज इक्वल टू, ये आ जाएंगे सब रूट में, तो a इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 का स्क्वायर. यहाँ पे जो 3 इंटू 3 है ये आपको पता है ना कैसे आया, 4 टाइम्स हमारा 3 आया था, दैट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो एक है, तो ये आ गया 3 इंटू 3 का स्क्वायर. so, अब इसे रूट से बाहर निकालेंगे, तो दिस इज द पेयर ऑफ 2, तो एक यहाँ से बाहर आ गया, और ये भी पेयर ऑफ 2 था तो ये भी बाहर आ गया. ठीक है, 3 स्क्वायर बाहर आ जाएगा यहाँ से. सी यहाँ पे थे 3 4, एक इस वाले में से आया, एक इस वाले में से बाहर आया, तो 3 इंटू 3 बाहर भी क्या हो गया, 3 इंटू 3 इंटू हुआ तो ये आ गया 3 स्क्वायर, तो 5 इंटू 3 स्क्वायर. सो 5 और 3 स्क्वायर क्या होता है 9, तो 5 इंटू 9 इज 45. सो ए की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारी 45. हेंस द नंबर इज 45. हेंस द नंबर्स आर, पहला अगर 45 है तो दूसरा क्या होगा 1575 बाय 45 करेंगे तो दिस विल गिव यू 35. ठीक है, अगर पहला नंबर हमारा 45 है तो दूसरा नंबर क्या आया 35 आया,
जिनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1575. So these are the two numbers जिसका प्रोडक्ट क्या था 1575. Now the next question is find the smallest square number. We have to find out here smallest square number divisible by each one of the numbers 8, 9 and 10. जो किससे divisible हो 8 से 9 से और 10 से तीनों से. ठीक है. So solution क्या है? The smallest number divisible by each one of the number 8, 9, 10 is their LCM. कौन सा ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों से डिवाइड होगा? वो उनका होगा LCM होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, वही तो डिविजिबल होगा इन तीनों से. अब क्लियरली द LCM ऑफ 8, 9 एंड 10 इज 8, 9 और 10 का LCM निकाल लेते हैं. टू जा 4, 9, 2 5 जा 2, 2 जा 4, 9 and 5. ओके ऐसे डायरेक्ट 4 से ही कर लेते हैं बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं है तो बहुत लंबा चला जाए. सो 4 बन जा 4 हो गया. 9 सॉरी 2 4 जा 8, 9 and 2 5 जा 10. अब 4 बन जा 4, 9 and 5. 5 बन जा 5 and then 9 बन जा 9. तो क्या आ गया 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 9. ओके ये इसका एलसीएम आ गया दैट इज 360 डिग्री. सो 360 क्या आ गया हमारा एलसीएम आ गया 8, 9 एंड 10 का. नाउ रिजॉल्विंग 360 इंटू प्राइम फैक्टर्स. अब 360 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं. टू 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0. 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 0. 2 4 जा 8, 2 5 जा 10. 3 1 जा 3, 3 5 जा 15. 3 5 जा 15, 5 1 जा 5. So prime factors of 360 is 2 into 2 into 3 into 3 into 5. Okay, these are the factors of prime factors of 360. Now grouping the factors into pair of equal factor. तो एक ग्रुप ये बना 2 का, 3 का एक ग्रुप बना और 2 और 5 जो बचा था उनका एक ग्रुप बना. Clearly here is no factor to form the pair of 2 and 5. यहाँ पर आपको दिख रहा है जो 2 और 5 है इनका कोई भी फैक्टर पेयर नहीं बन रहा है. Thus to make 360 a perfect square, 360 को एक perfect square बनाने के लिए we have to multiply it by 2 into 5 से multiply करना पड़ेगा तभी तो इनका पेयर बनेगा. एक 2 से और एक 5 से तो that means 2 into 5 is 10. तो मतलब इसे 10 से multiply करना पड़ेगा. So hence the smallest square number जो divisible है 8 और 9 से. ठीक है 8, 9 and 10 is इसको हम क्या कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई किया तो 360 को we have multiplied this 360 by 10 to make it a perfect square. Okay so 360 into 10 कर देंगे that is equal to 3600. So 3600 is the smallest square number जो divisible है किससे 8, 9 और 10. ओके आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है बस आपको क्या फाइंड आउट करना था स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो डिविजिबल है इन तीनों से 8, 9 और 10 से. सबसे पहले आप खुद ही बताइए ऐसा कौन सा नंबर होगा जो तीनों से डिविजिबल होगा. हमें कैसे पता चलता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल के दैट इज एलसीएम. तो पहले मैंने इन तीनों का एलसीएम निकाला जो क्या आया 360 आया. फिर मैंने चेक किया जो हमारा 360 आया क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है. तो जब मैंने उसे चेक किया तो मैंने उसके लिए प्राइम फैक्टर्स निकाले. तो हम कैसे पता करते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है बाय मेकिंग द पेयर ऑफ प्राइम फैक्टर्स.
तो यहाँ पे देखिए सबके पेयर तो बन रहे हैं 2 और 3 के, बट 2 और 5 जो हैं उनके पेयर नहीं बन रहे हैं। तो दैट मीन्स हमें उस 2 और 5 से एक पेयर जो 2 और 5 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका पेयर बन जाएगा, दैट मीन्स 2 इंटू 5 दैट इज 10। तो हमने क्या किया, 10 से इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, वी गॉट द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो डिविजिबल है 8, 9, 10 से, तो डिविजिबल है ही और एक परफेक्ट स्क्वायर भी। सो अब कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, in this we have given 5,929 students are sitting in an auditorium in which in such a manner that there are as many students in a row as there are rows in the auditorium. Find how many rows are there in the auditorium. सी हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें बोला गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है, वी हैव गिवन नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं 5,929 और इनका कुछ सेटिंग अरेंजमेंट दिया है। सेटिंग अरेंजमेंट इस तरीके से दिया है दैट जितनी यहाँ पे रोज़ हैं R1, R2, R2 जितनी भी रोज़ हैं, जितनी नंबर ऑफ रोज़ हैं उतने ही उस रो में बच्चे बैठे हैं। जैसे 20 नंबर ऑफ रोज़ हैं उस ऑडिटोरियम में, मीन्स हर एक रो में 20 बच्चे होंगे। इस रो में भी 20, इस रो में भी 20, इस रो में भी 20, इस रो में भी 20। तो ये क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तभी तो बनेगा जब ये भी ये और ये सेम होंगे, देन इट विल बी अ स्क्वायर। तो यही क्वेश्चन में बोला गया है हाउ मेनी रोज आर देयर इन द ऑडिटोरियम। तो हमें फाइंड आउट करना है कि वहाँ पे कितनी रोज हैं। लेट देयर बी ए रोज इन द ऑडिटोरियम। वी हैव लेट जो रोज है नंबर ऑफ रोज ऑडिटोरियम में उसको ए। सिंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द रो इज सेम एज द नंबर ऑफ रो इन द ऑडिटोरियम, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो नंबर ऑफ रोज हैं वो सेम है किसके, द नंबर ऑफ स्टूडेंट सिटिंग इन दैट रो। मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा अगर नंबर ऑफ रो हमने ए लेट किया है। सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो, तो ए रो में कितने बच्चे बैठे हैं, ए बच्चे बैठे हैं। दैट मीन्स ए रो में कितने बच्चे बैठे हैं, ए स्क्वायर बच्चे बैठे हैं। ओके, इट इज़ गिवन दैट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें बता रखा है ऑडिटोरियम में कितने, अगर ए रोज हैं, ए बच्चे बैठे हैं हर रो में, तो दैट मीन्स ए स्क्वायर। टोटल कितने बच्चे बैठे हैं ऑडिटोरियम में, ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है दैट इज 5,929। सो फ्रॉम हेयर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5,929 आ जाएगा, बिकॉज ए स्क्वायर इज ऑल्सो हमारा क्या, ए स्क्वायर क्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट और जो गिवन है क्या, दैट इज 5,929। सो यहाँ से ए आ जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5,929। अब इस जो 5,929 है इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। वी सॉल्व दिस बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। 7 8 जा 56, 7 4 जा 28, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 and 7 1 जा 7। अब आ गया 2 1 2, this will be solved by 11 only, 11 1 जा 11, so 11 1 जा 11। तो ये आ गया 7 into 7, 11 into 11, okay, 7 into 7 into 11 into 11। तो मीन्स एक पे बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट, ये क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर। अब अंदर ऊपर से रूट है तो दिस विल कट बाय दिस टू दिस स्क्वायर्स, मतलब एक कॉमन लेके, तो ये आ गया 11 इंटू 7 दैट इज 77। तो ए क्या आ गया हमारा, द वैल्यू फॉर ए इज 77, ए की वैल्यू आ गई 77। हेंस देयर आर 77 रोज, मतलब कि वहाँ पे कितनी रोज हैं, 77 रोज इन द ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम में 77 रोज हैं। तो हमें यही फाइंड आउट करना था कि उस ऑडिटोरियम में कितने नंबर ऑफ रोज हैं, दैट इज 77। अब 77 रोज हैं, ठीक है, तो मीन्स हर एक रो में 77 लोग बैठे।
that is equal to total number of student 5929. Like this you will solve questions of these type. Now the next question is a general wishing to arrange his man who were 3,35,250 in number in the form of square. ठीक है, ये है एक नंबर ऑफ मैन्स, ये चाहता है इनको अरेंज करना बट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, दैट देयर आर 9 मैन लेफ्ट. अब जिसमें से अब इन्हें लग तो दिया ये स्क्वायर में, इनको अरेंज कर दिया, जिसमें कितने लोग बच जा रहे हैं, 9 मैन लेफ्ट हो जा रहे हैं, मतलब 9 लोग बच जा रहे हैं. तो हाउ मैनी वर इन द ईच रो, तो हमें पता करना है कि हर एक रो में कितने लोग होंगे. लेट देयर वर ए मैन इन ईच रो, हमने लेट कर लिया ए मैन है हर एक रो में. देन नंबर ऑफ रोज भी तो इक्वल होंगे नंबर ऑफ मैन के इन अ रो, बिकॉज ये क्या है, एक स्क्वायर बन रहा है, तो जितना ये होगा उतना ये ही होगा ना, तो दैट इज ए इंटू ए. टोटल नंबर ऑफ मैन इन अ रोज आर ए इंटू ए, जो क्या है इज इक्वल टू ए स्क्वायर. So it is given that after arranging man in the form of a square, 9 men were left over. ऐसा बोला गया कि उनको अरेंज करने पे स्क्वायर में कितने लोग बच गए, 9 मेन्स वर लेफ्ट ओवर देयर. सो टोटल नंबर ऑफ मैन क्या हो जाएंगे, ए स्क्वायर, तो जो स्क्वायर बन रहा था वो प्लस 9 जो बच गए, ये तो वो हमारा टोटल नंबर ऑफ मैन. दिस विल बी द टोटल नंबर ऑफ मैन. सो बट द टोटल नंबर ऑफ मैन वॉज, वो गिवन है हमें 3,35,250. सो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9, ए स्क्वायर प्लस 9 ही टोटल नंबर ऑफ मैन थे, दैट इज इक्वल टू 3,35,250. सो यहाँ से हम ए स्क्वायर निकालेंगे, 9 को इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, 3,35,250 माइनस 9 हो जाएगा. इसको इससे माइनस करके हमारे पास आ गया 3,35,241. ये है ए स्क्वायर. अब ए निकालना है तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा रूट ऑफ 3,35,241. मीन्स अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 3,35,541 का, सॉरी. एंड वी विल सॉल्व दिस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. देखिए ऐसे सॉल्व होगा, 3, 3, 5, 2, 4, 1. दिस इज द क्वेश्चन. ये हो जाएगा 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, अब बचा 22, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21. Again it will go by 3, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, सॉरी 3 9 जा 27. ओके, अब ये जा रहा है हमारा 193 से. ओके, इसके अलावा ये बहुत डिफ़िकल्ट है किसी नंबर से जाए, सो इट विल गो बाय 193, 193, 193 जा, सो 193 इंटू 1, ये कम्प्लीटली चला गया 193. ये और भी नंबर से जा सकता है बट हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा उसे सॉल्व करने में. ओके, सो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, प्राइम फैक्टर्स आर 3 इंटू 3 इंटू 193 इंटू 193, तो एक पेयर आ जाएगा ए 3 स्क्वायर और 193 का स्क्वायर.
ओके, दैट मीन्स 3 इंटू 193 का होल स्क्वायर, और रूट भी था तो स्क्वायर से रूट गया, तो अब बच गया हमारे पास 3 इंटू 193, दैट इज ए इज इक्वल टू 579 आ गया। ओके, ए की वैल्यू आ गई हमारी 579, हेंस देयर वर 579 मैन इन ईच रो। हर एक रो में कितने आदमी थे? 579। यही हमें फाइंड आउट करना था। वी हैव टू फाइंड आउट दिस ओनली, दैट हाउ मैनी were there in each row. There are 579 man in each row. So like this you can solve the word problems related question of square and square root chapter. Hope you understand these questions and the video is useful for you. For more such videos, please like, share and subscribe to Q Tricks. Thank you.